بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام اجاد الحسن ہے اور آج ہم بی اے پارٹ 1 کی جو نظم ہے لیئر، اس کا کریٹیکل اینڈ اسٹائلسٹک انالیسس کریں گے۔ اس نظم کے اوپر آلریڈی ایک لیکچر ہو چکا ہے جس کے اندر ہم نے ایکسپلینیشن اور اس کے جو مین پوائنٹس ہوتے تھے ریفرنسز کے ساتھ وہ نظم ہم نے ڈسکس کر لی تھی۔ تو آج ہم اس کا کریٹیکل اینڈ اسٹائلسٹک انالیسس کریں گے۔ اس کے کچھ مین پوائنٹس ہیں جو میں نے بورڈ کے اوپر لکھے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے واٹ از سونٹ۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے واٹ از سونٹ۔ تو سونٹ کے حوالے سے ہمیں پتا ہونا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے لیئر، ایکچولی یہ پوائنٹ نہیں، یہ سونٹ ہے۔ سونٹ از اے 14 لائنز پوائم، 14 لائن پہ مشتمل ہوتی ہے۔ The word sonnet comes from Italian word sonetto which means little sound or song۔ little sound اور song جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سونیٹو کا۔ تو 14 لائنز پوائم ہوتی ہے۔ اگر اس نظم کا سٹرکچر دیکھتے ہیں، اس نظم کو اگر ہم دیکھتے ہیں، میرے پاس بک موجود ہے، آپ بھی دیکھ لیں اس کو، تو یہ 14 لائنز پہ مشتمل ہوتی ہے۔ تو اس کا سٹرکچر ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے پوئٹ کی طرف سے، جو اس کی پہلی 12 لائنیں ہوتی ہیں ان کے اندر پرابلمز اور ان کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے، اور آخری جو 2 لائنیں ہوتی ہیں 13 اور 14 لائن، اس کے اندر سلیوشن بتایا جاتا ہے، کنکلوژن بتایا جاتا ہے اور سجیشن دی جاتی ہے۔ تو پہلی 12 لائنیں جو ہوتی ہیں وہ پرابلمز کو ڈسکس کرتی ہیں، کمپلیکس جو سچویشن ہوتی ہے اس کو بتاتی ہیں، اور آخری 2 لائنیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے حوالے سے سلیوشن ہوتی ہیں۔ تو یہ نظم جو ہے یہ سونٹ ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ جو ہے اس کا ہم نے یہاں پہ بورڈ کے اوپر مینشن کیا ہے وہ ہے ہیروئک کپلٹ۔ یہ پوائم جو ہے ہیروئک کپلٹ کے پیرامیٹر پہ بنائی گئی ہے۔ ہیروئک کپلٹ کیا ہوتا ہے؟ Heroic couplet is a pair of rhyming iambic pentameter much used by Chaucer and other 17th and 18th centuries poet۔ جو ہے چوسر، جیفری چوسر ایک بہت بڑے ویل نون پوئٹ تھے۔ ان کی ایک کینٹربری ٹیلز کے نام سے بہت بڑی بک ہے جو پاپولر تھی۔ تو یہ والا جو ہیروئک کپلٹ والا فارمولا جو ہے یہ جیفری چوسر نے بھی بہت زیادہ یوز کیا، اور 18 سینچری کے ایک اور پوئٹ تھے الیگزینڈر پاپ، انہوں نے بہت زیادہ اس کو بھی یوز کیا ہے۔ تو ان کی یہ ٹیکنیک ہوا کرتی تھی۔ تو یہ پوائم بھی آپ کو 2 اشعار کی صورت میں، یعنی کہ 2 لائنز کی صورت میں، آپ کو ایک کپل کی صورت میں، کپل آف لائنز کی صورت میں آپ کو یہ نظر آتی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ہیروئک کپلٹ کے جو پینٹامیٹر کے اوپر جو ہے یہ بنائی گئی، آئمبک پینٹامیٹر جسے کہا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ ڈیزائن کی گئی ہے یہ نظم۔ تو اس کی ساری لائنیں ایسے ہی ہیں۔ تو تھرڈ پوائنٹ جو میں نے یہاں پہ بتایا ہے وہ گرافولوجیکل لیول ہے۔ گرافولوجیکل لیول، تو یہ نظم جو ہے گرافولوجیکل لیول کیا ہوتا ہے؟ It describes the pattern of writing and the style of the poet which he used in his poetry۔ یہ جو ہے گرافولوجیکل لیول وہ پیٹرن ہوتا ہے جو سٹائل خود یوز کرتا ہے، اور it depends on punctuation and capitalization۔ اس کے اندر جو پنکچویشن یوز کی جاتی ہے اور کیپٹلائزیشن ہوتی ہے جو لیٹرز کی، وہ گرافولوجیکل لیول ہوتا ہے۔ اگر اس پوئم کو ہم دیکھیں، اس کو اسٹڈی کریں، اس کے اندر آپ کو گرافولوجیکل لیول کا کافی سارا اسٹرکچر نظر آتا ہے، جیسا کہ میرے پاس بک پہ مینشن ہے۔ اس کے اندر، اس پوئم کے اندر جو ہے آپ کو جو کاماز یوز کیے گئے ہیں وہ تقریباً 11 ٹائم یوز کیے گئے ہیں، 11 دفعہ کاماز یوز کیے گئے ہیں۔ تو یہ گرافولوجیکل لیول کی ٹیکنیک کو شو کرتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے فل سٹاپ وہ 7 ٹائم یوز کیے گئے ہیں، 7 دفعہ جو ہے فل سٹاپ یوز ہوا ہے اس کے اندر۔ تو فل سٹاپ کیا شو کرتا ہے؟ فل سٹاپ شو کرتا ہے جو ایک سینس کمپلیٹ ہوتی ہے اس کو شو کرتا ہے، اور جو کاماز یوز ہوئے، اگر کاما کی بات کی جائے جو 11 ٹائم یوز ہوا ہے کاما، تو کاما جو ہوتا ہے وہ پاز کو شو کرتا ہے کہ رائٹر جو ہے پاز لے رہا ہے، اس کے بعد پاز لینے کے بعد وہ اگلی کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو شو کرتا ہے۔ اور اس کے اندر ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایک اور ہے، اپاسٹروفی یوز ہوئی ہے، وہ سنگل ہی ہوئی ہے، ایک دفعہ اپاسٹروفی یوز ہوئی ہے۔ تو وہ کہاں پہ ہوئی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ تھرڈ لاسٹ جو ہے اسٹینزا جو کپلٹ ہے اس کے اندر اپاسٹروفی یوز ہوئی ہے۔ لائن یہ ہے، نو ٹائم ٹو ٹرن ایٹ بیوٹیز گلانس۔ جو ورڈ بیوٹی ہے اس کا پہلا لیٹر جو ہے کیپیٹل کیا گیا ہے پوئٹ کی طرف سے، اور بیوٹی کا جب اسپیلنگ پورے ہوتے ہیں اس کے وائی کے بعد اپاسٹروفی لگا کر ایس ڈالا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے بیوٹی کے ساتھ جو ہے اپاسٹروفی ڈال کے جو لگایا گیا، یہ کسی خاص قسم کی جو ہے نا سچویشن کے اوپر فوکس کر رہی ہے۔ تو یہ فوکس کرنے کے لیے سچویشن کے اوپر، اس کو امپورٹنس دینے کے لیے، پرسونیفائی کرنے کے لیے جو ہے اپاسٹروفی یہاں پہ لگائی گئی، اور ایک ہی اپاسٹروفی یوز ہوئی ہے پوری نظم کے اندر۔ تو یہ گرافولوجیکل لیول تھا۔ اس کے اندر فل سٹاپ تھے جو کہ 7 ٹائم یوز ہوا ہے، کاما جو ہے 11 ٹائم یوز ہوا ہے، اور اپاسٹروفی جو ہے صرف ایک دفعہ یوز ہوئی ہے۔ دین اس کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے
वो इसकी राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम एक्चुअली क्या होता है, राइमिंग स्कीम इज द सेम साउंड वर्ड एट द एंड ऑफ द लाइन। जो लाइनों के आखिर में जो वर्ड सेम होते हैं उनकी जो साउंड सेम आती है, वर्ड सेम नहीं होते लेकिन साउंड जो उनकी सेम आती है वो आपकी राइमिंग स्कीम होती है। जैसे कि पहली लाइन में केयर एंड स्टेयर, तो फिर गोज एंड गोज, ये जो है ये आपको जो है इनकी राइमिंग स्कीम सेम है। आपको ये नजर आ रहा होगा, पता चल रहा होगा, जब नज़म आप पढ़ेंगे इसको आपको समझ हो जाएगी। सम टाइम आपने ऐसा देखो कुछ नज़में ऐसी होती हैं जिनके अंदर राइमिंग स्कीम नहीं होती। इफ द पोएम हैज नो राइमिंग स्कीम देन इट इज कॉल्ड फ्री वर्क। जो नज़में राइमिंग स्कीम नहीं रखती, और बहुत सारे लिटरेचर के अंदर मॉडर्न जो पोइट्स हैं वो राइमिंग स्कीम और ये जो इसके पोइट्री के जो पैरामीटर्स होते हैं उन पे पूरा उतना नहीं उतरते और उनको उस एंगल में नहीं लिखते, तो वो नज़में फ्री वर्स कहलाती हैं। जिनकी राइमिंग स्कीम वगैरह नहीं होती उसे फ्री वर्स कहा जाता है। बट ये पोएम जो ये राइमिंग स्कीम के पैरामीटर पे पूरा उतरती है। तो राइमिंग स्कीम लिखने का खास स्ट्रक्चर होता है कि पहला वर्ड अगर आपने देखा तो उसको आप ए मेंशन करते हो, तो दूसरी या तीसरी किसी लाइन में जाके वैसा ही सेम लफ्ज आप लेंगे तो वो भी एक, और सेकंड वर्ड को आप जो कोई और वर्ड है तो उसको आप बी मेंशन करते हो, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन में कहीं पे भी जाके अगर उस तरह वर्ड मिलता तो उसके साथ वो बी को दूसरा अटैच करेंगे। तो ये खास किस्म का तरीका होता है राइमिंग स्कीम को बनाने का। राइमिंग स्कीम क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है या सेम साउंड होता है एट द एंड ऑफ द लाइन, उसको कहा जाता है। तो अगला पॉइंट जो है यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया वो फिगर ऑफ स्पीच है। इस नज़म को अगर देखा जाए तो ये काफी रिच है, इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। इसके अंदर 3 तरह की फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुई हैं। तो एक लिटरेरी टेक्निक होती है फिगर ऑफ स्पीच जो होती है। तो सबसे पहले जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है 4th लाइन के अंदर हुई है, मैं लाइन बोल देता हूँ, एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप्स और काउज। तो इसके अंदर जो वर्ड एज है, एज जो है ये सिमिली होता है। तो सिमिली एज और लाइक जो थे सिमिली होती हैं। तो यहाँ पे जो है एज वर्ड यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो सिमिली होती है वो कंपैरिजन को शो करती है। तो यहाँ पे एज 2 दफा यूज हुआ है, एज लॉन्ग एज शीप्स एंड काउज। यहाँ पे जानवरों एनिमल्स के साथ जो है पोएट इंसान का कंपैरिजन कर रहा है। तो यहाँ पे सिमिली यूज हुई है, पहली जो फिगर ऑफ स्पीच है। देन अगेन यूज किया हुआ है फिगर ऑफ स्पीच को। एक मजीद लाइन है एट द मिड ऑफ द पोएम, स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट द नाइट। स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्टार्स एट द नाइट। वो कह रहा है कि जो नदियां हैं वो सितारों से भरी हुई होती हैं, जैसे सितारों से भरी हुई जैसे रात को आसमान। इसकी भी एक डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने दी थी आपको जब हमने ये नज़म पढ़ी थी। तो यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई इस लाइन के अंदर जिसको कहा जाता है एलिट्रेशन। एक सिमिली यूज हुई और सेकंड क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन एक्चुअली ये भी फिगर ऑफ स्पीच है और ये सेम साउंड होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इन अ लाइन। एक लाइन के अंदर सेम साउंड जो होता है वो उसको कहा जाता है एलिट्रेशन। तो जिस तरह ये लाइन आप देख रहे हो, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। स्ट्रीम का एस, स्टार्स का एस और स्काईज का जो एस है, ये तीनों लफ्जों का जो है जो एस ये शो करता है ये एलिट्रेशन है। एक ही लाइन के अंदर जो है 3 दफा ये वर्ड यूज हुआ है एक लाइन के अंदर। तो एस जो है ये रेपिटिशन है। अगर एलिट्रेशन को कहा जाए तो इट इज अ रेपिटिशन ऑफ अ सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इन अ सेम लाइन। तो सेम साउंड्स का बार बार रिपीट करना एक ही लाइन के अंदर, तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। तो इस लाइन के अंदर जो है नज़म के अंदर स्ट्रीम का एस, स्टार का एस और स्काईज का एस जो है ये बार बार रिपीट हुआ है। तो एक इसी लाइन के अंदर अगेन दोबारा सिमिली भी यूज की हुई है, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। तो पहले जो है आपका एज यूज किया गया था, तो अब यहाँ पे लाइक भी यूज हुआ है। तो यहाँ पे यूज किया गया राइटर की तरफ से, पोएट की तरफ से। तो लाइक भी जो है ये भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो जैसे कि रात को आसमान पे सितारे निकलते, इसी तरह नदियां जो हैं वो दिन में सूरज की रोशनी की वजह से जब पानी गिरता है पत्थरों के ऊपर तो वो भी चमक रही है सितारों की तरह। तो लाइक भी जो है सिमिली के तौर पे यूज हुआ है। तो देन अगेन राइमिंग्स के इसको फिगर ऑफ स्पीच को अगर देखा जाए तो एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, वो 3rd वन है जिसे
जिसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। पर्सोनिफिकेशन थर्ड वन फिगर ऑफ स्पीच है जो इस नज़म के अंदर यूज की गई है, और वो कहाँ पर है? वो है जी जहाँ पर ये लाइन है आपकी, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस जो एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। जो वर्ड ब्यूटी है इसका कंपैरिजन किया गया है किसके साथ? फीट के साथ। पर्सोनिफिकेशन को अगर देखा जाए, पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें कंपैरिजन किया जाता है एक ह्यूमन क्वालिटी का विद नॉन लिविंग थिंग। अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, पर्सोनिफिकेशन इज अ कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन क्वालिटी विद नॉन लिविंग थिंग्स। बेजान चीज के साथ इंसानी क्वालिटी का जो कंपैरिजन होता है वो पर्सोनिफिकेशन होता है, और यहाँ पे ब्यूटी का कंपैरिजन किया गया इंसानी फीट के साथ। तो यहाँ पे आपको पर्सोनिफिकेशन जो थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको नजर आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो दो स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स हैं, एक एक्सप्रेशनिज्म और सेकंड है मटेरियलिज्म। अगर आप इस नज़म को देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस की गई हैं। जैसे कि इस लाइन को देखा जाए, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, ये, और इसके बाद नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच द स्माइल हर आईज बिगिन। स्माइल हर आईज बिगिन ये शो करता है एक्सप्रेशनिज्म को। एक्सप्रेशनिज्म एक टेक्निक है, लिटरेरी टेक्निक है जो पोइट्स की तरफ से, राइटर्स की तरफ से यूज की जाती थी एक खास किस्म की विजडम को देने के लिए, थॉट्स को क्रिएट करने के लिए। तो ये यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है राइटर की तरफ से, पोइट की तरफ से, एक्चुअली पोइट की तरफ से एक्सप्रेस किया जा रहा है कि खास किस्म की कि कैसे आंखों से जो है इंसान स्माइल करता है, ना कि मुंह को डिजाइन बनाने से स्माइल किया जा सकता है। तो ये एक्सप्रेशनिज्म को शो करती है। दूसरी जो टेक्निक यहाँ पे यूज हुई है वो मटेरियलिज्म है। मटेरियलिज्म एक जो मॉडर्न जमाने की खास किस्म की टेक्निक है कि इंसान मटेरियल के पीछे भागता है, वो चीजें जो नॉन लिविंग है, जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी चाहिए, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। मटेरियलिज्म है टेंडेंसी टू कंसीडर मटेरियल एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट। मटेरियलिज्म है टेंडेंसी टू कंसीडर अ मटेरियल एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट। इंसान की आज मौजूदा जो इंसान है, जो मॉडर्न जमाने के इंसान है या पोस्ट मॉडर्न जमाने के इंसान है, वो समझता है जो मटेरियल है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बंगला और अच्छे मोबाइल फोन और बहुत सी दूसरी लग्जरीज हैं, उनको समझता है कि शायद ये कंफर्ट का जरिया है और इन्हीं के अंदर इंसान का सुकून है, जो कि गलत बात है। तो इसको मटेरियलिज्म कहा जाता है। इस नज़म के अंदर आपको थ्रू आउट द पोएम आपको ये सेंस नजर आती है, जब आप इसको पढ़ते हैं, इसका टेक्सचर नजर आता है मटेरियलिज्म का, कि इंसान ने अपने आप को बिजी कर लिया है कि व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। पहली दो लाइनें ही शो कर रही हैं आपको कि जिंदगी इतनी बिजी हो चुकी है इर्द गिर्द के कामों में, एक्टिविटीज में, और हमारे पास वक्त नहीं बचा कि हम देख सकें, कि हम अपने आप को पहचान सकें, अपनी पहचान कर सकें, नेचर के हवाले से देख सकें हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो ये मटेरियलिज्म को ही शो करती हैं समहाउ। तो इसके अंदर मटेरियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म जो है, ये दोनों टेक्निक आपको, जो स्टाइलिस्टिक टेक्निक्स हैं, ये आपको नजर आती हैं, आप इसको देख सकते हैं। और ये नज़म जो है, जो कि दो लेक्चर्स के अंदर डिवाइड की गई है, तो इसको ब्रीफली हमने डिस्कस कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, आपने इसको स्टडी किया होगा ऑलरेडी, जो पिछला लेक्चर था उसको भी, और इसको भी घर में जरूर देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो अनसीन होते हैं, वो बड़े डेप्थ में होते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं होते कि खाली आपको समरी दे दी, क्रिटिकल एनालिसिस दे दिया या इवन थीम दे दिया। तो इसके ऊपर बहुत ब्रीफली किसी लाइन को देके उसके हवाले से आपसे नोट पूछा जा सकता है। तो इस नज़म के ऊपर आपको मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली कोर्स की पहली नज़म है, तो आपको इसका हर एंगल से अंदाज़ा होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, आप घर में इसको स्टडी करेंगे, घरों में रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए कीजिएगा, इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।